It is visible. Cool. Great. I like the enthusiasm of the class. So everyone is responding. Nice. So let's start. So, what do you guys understand by Power BI? What is it? Have you guys ever gone through the interface of Power BI, or anyone heard about it? What technology it work on? Anyone? मैम बेसिकली एक वो इंटरैक्टिव जो चार्ट्स होते हैं वो उसको CSV फाइल से डेटा उठा के चार्ट्स बनाने के काम आता है। कॉलेज में थोड़ा यूज कर रखा है इसलिए आता है थोड़ा बहुत। Okay. Yeah, Tejasvi, you were nearby. Yes, we can say कि हम कोई डेटा सेट लेके एंड उसको chats banana will be a very particular edge case of Power BI, but we can say कि हम interactive dashboards और reports तैयार कर सकते हैं out of that data, right? So let's move forward. देखते हैं कि Power BI actually है क्या and how we are going to work on it. So this will be the overview of our course. First is introduction. So we'll see basic introduction of Power BI. What Power BI consists of, क्या इंटरफेस होता है पावर बीआई का, किस तरह से काम होता है, कितने तरह के ऑप्शंस होते हैं हमारे पास में अवेलेबल. विल सी दैट. Then we will install the application in our system, and then we will see the data transformation and modeling part. Here we will discuss that कि हम डेटा को कैसे पावर बीआई में इंपोर्ट करेंगे, उसके साथ में ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करेंगे. देयर आर सो मेनी टाइप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशंस, हम वो डिस्कस करेंगे यहाँ पे. डैक्स को पढ़ेंगे, हाउ डैक्स आर बीइंग यूज्ड इन पावर बीआई. Then next is creating report visualizations. So in this part, we will actually um, import the data in Power BI and make some visuals. Maybe we can say a practice dashboard kind of a thing. So I'll share a few data sets with you guys, and we can work on those data sets and make a dashboard together. Uh, then the another part is publishing and sharing reports. So in our classes, in our scenario, because this functionality is very limited to users who are having Power BI Pro license, which is the service of a Power BI web service. So I can show you this part, but I don't think so many of you can perform this action. But I can teach you about this, that how it is going to be happening when you will be working in any industry or organization. Next is advanced data analysis and DAX. So actually, DAX is a very advanced topic. So since we are beginning to learn Power BI, so first we will cover all the important topics which are very important for you guys to make dashboard and continue with your data analysis journey. And then at last, we will cover the DAX part, advanced DAXs, and we'll learn how we can use them in our reports. And at last, I will give you few more data sets so that you can make a dashboard by yourself. And we can discuss any problems if you will face in making those dashboard, and we can resolve them in the class. Cool? Yes, ma'am. Great. So I want to know, how many of you are working right now? Raise your hands.
I mean, people who are placed already working with an organization, maybe doing some internship. Okay, Satya. Anyone? No one else. Okay, cool. So, I just wanted to know कि मतलब अगर आप working है तो are you working in the similar technology or the other ones? So since mostly people are not working, mostly all of you are here just for learning. So that is great. तो मैं अपना जो पढ़ाने का तरीका है I'll modify accordingly. Right. So Satya, are you working in the similar technology or is it the different one? Ma'am, I used to work in Ford as a data analyst, but I used to use SAS. I never used Power BI. Okay, so you have worked on SAS. Great. No problem. Cool. Let's move forward. Okay. So introduction to business intelligence. So मेरा पहला question होगा कि what do you understand by business intelligence? What is it? आपकी क्या understanding है as to start with this topic? Anyone? क्या अभी तक आपको पता है business intelligence क्या होता है? मैम मैम, ऑपरेशन में डेटा तो होता है, Wait, उसमें wait, wait. पैटर्न जो जनरेट होते हैं तो इंटेलिजेंस जो आती है, मुझे अभी insights कुछ जो आती समझ है में कि नहीं आप आया. Let's do one thing. If I'll ask a question, you will raise your hand and I'll call out the name और जिसका name call out होएगा वो answer करेगा. Good with this? Okay, sure. Go ahead, Tejasvi. Let's hear your answer and then we'll talk with Satya. Yeah, Tejasvi, Hello? you can speak now. Yeah. मैम तो जैसे जो कोई बिजनेस ऑपरेट कर रहा है तो उनको डेटा जनरेट होता है कि सेल्स का डेटा आया, प्रोडक्ट्स कौन से नए आ रहे हैं, या फिर कहाँ पे कितनी सेल्स हुई, कैसे कस्टमर बेस है, तो फिर उससे जो पैटर्न जनरेट होता है कि यहाँ पे ये प्रोडक्ट ज़्यादा अच्छा सेल हो रहा है, वहाँ पे वो हो रहा है, फिर उससे वो इंसाइट्स आते हैं कि हाँ यहाँ पे ये सेल हो रहा है तो दूसरे टाइप का प्रोडक्ट है वो भी सेल हो सकता है, तो फिर उससे वो इंसाइट्स जनरेट होती है, तो वो बिजनेस इंटेलिजेंस वो इंसाइट्स को कहते हैं जो जनरेट होती है डेटा से, जिसके ऊपर डिसीजन लिए जा सकते हैं कि आगे बिजनेस को कैसे चलाना है. Right. Nice example. But let's say आपको एक word में describe करना है the whole process. एक word, I mean एक sentence. Let's short it down to one sentence and what it will be. Insights generated from raw data. Great. This is the correct answer. So, okay, Satya, we'll talk to you in another section. So, yes, correct. So, business intelligence is something that we get the raw data. और हम उस रॉ डेटा से कैसे उसमें ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करके अकॉर्डिंग टू आवर नीड्स, अकॉर्डिंग टू आवर क्लाइंट्स नीड्स, हम कैसे परफॉर्म उसको ट्रांसफॉर्म करेंगे, उसको मॉडिफाई करेंगे, उसके साथ में प्ले अराउंड करेंगे एंड कैसे हम उसमें से इंसाइट्स निकाल के लाएंगे, राइट? सो दिस इज ऑल बिजनेस इंटेलिजेंस. So the word itself describes that something which is helpful for the business and it will come out of a data set. So that will be intelligence. We will have something to support our point, to support our assumptions or maybe theory, whichever we will give, that these are the cases and this is our solution and this kind of data is backing up our solution. So this is business intelligence. Let's see the definition kind of it. So our first topic is what is Power BI? So Power BI is a collection of software, services, apps, and connectors that work together to turn your unrelated sources of data into coherent, visually immersive and interactive insights. So it is a self-explanatory definition. So if I'll describe the Power BI, so I'll describe it as a collection of services and apps and many different type of functionalities
which will help me to transform my data and then make a very interactive and visually immersive dashboard. Next is why Power BI. This is a very important question because um, I have faced this question a lot. कि Power BI ही क्यों? There are so many other BI platforms which we can use in making of dashboards. तो BI इसीलिए क्योंकि if you will search in Google तो आप गूगल ट्रेंड्स एक फीचर है गूगल का, वहाँ पे जब आप सर्च करोगे एंड कंपैरिजन करोगे टैबलू के साथ में, पावर बीआई के साथ में, देयर आर अदर प्लेटफॉर्म्स लाइक विजियर एंड सो मेनी अदर्स आर देयर. सो अगर जब सब आप सबका कंपैरिजन करोगे सो देयर विल बी मोर सर्च प्लेटफॉर्म एंड दैट विल बी पावर बीआई. Power BI is mostly searched in India, in US, in Australia, even in Japan and in these countries. So because Power BI is in demand in market, that is why Power BI. क्योंकि अगर हम ट्रेंड के साथ में चलेंगे, so that will be beneficial for our career as well. And क्योंकि if a technology is in trend, so it has some caliber. तो वो कैलिबर हमें सीखना है दैट व्हाट इज इट. एंड द नेक्स्ट रीजन इज मैक्सिमम नंबर ऑफ फीचर्स. एज वी विल मूव फॉरवर्ड इन आवर सेशन, आप देखोगे कि पावर बीआई के अंदर अनलिमिटेड काइंड ऑफ फीचर्स हैं. एंड देयर इज वन फंक्शनैलिटी जो कि मुझे पावर बीआई की सबसे ज्यादा पसंद है, विच इज पावर बीआई गिव अस मंथली अपडेट्स which makes the platform and the community even more stronger. So they take feedback from the users. Power BI की एक काफ़ी बड़ी community है जहाँ पे हम खुद अपने suggestions जाके दे सकते हैं if we are feeling that we need this feature in Power BI dashboard. So we can give our suggestion. Their team will review that okay, our user needs this kind of features in the platform and they will work on it. और maybe कुछ महीनों में आपको वो features Power BI पे दिखने लग जाएगा. So this is a very strong point that Power BI has maximum number of features for data analysis process. So it makes the process very easier. Okay. Next is cost of Power BI. As Microsoft already keeps their products very minimal priced compared to all other products available in market to cut out the competition. So yes, if any company is taking Power BI as a tool to make their dashboard, so their prices are very, very low in compare to other apps. Next is data connectivity. अभी हम आगे के सेशंस में देखेंगे. डेटा कनेक्टिविटी पावर बीआई के अंदर बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही ज़्यादा ऑप्शंस में अवेलेबल है. हम ऑलमोस्ट 50 सोर्सेज से डेटा लेके आ सकते हैं. सो 50 सोर्सेज आर वेरी ह्यूज नंबर इन टर्म्स ऑफ डेटा इंपोर्ट एक्टिविटी. आप 50 तरह के सोर्सेज से डेटा इंपोर्ट कर सकते हैं. सो यू हैव अ फ्रीडम कि अगर हम किसी एक पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म पे काम करें तो हमें सोचना नहीं पड़ेगा कि क्या इससे डेटा इंपोर्ट करके हम पावर बीआई पे ले जा सकते हैं. यस, पावर बीआई इज गिविंग दैट ऑप्शन कि आप बहुत सारे प्लेटफॉर्म से डेटा को इंपोर्ट कर सकते हैं पावर बीआई में और अपने डैशबोर्ड बनाने के लिए यूज कर सकते हैं. ग्रेट. एनी डाउट इन दिस पार्ट? क्वेश्चंस? ओके, I'm getting thumbs up. Great. We'll move forward. Next is components of business intelligence. So अभी हमने देखा कि what is business intelligence और business intelligence में ही as a tool हमें Power BI की consider करना चाहिए. अब हमें देखना है कि उसके components क्या हैं, क्यों हमें Power BI लेना चाहिए, क्या क्या Power BI offer कर रहा है. So first is real time data analysis. हम इन रियल टाइम में डेटा को रिफ्रेश कर सकते हैं. डेटा के साथ में
जो भी ट्रांसफॉर्मेशंस या हमें चेंजेस करने हैं वो रियल टाइम पे इफेक्टिव हम देख सकते हैं. We will discuss this point more in detail in future slides कि real time में हम data को कैसे change कर सकते हैं. So Power BI gives this feature कि आपका data अगर है और एक point of time पे वो change हो रहा है, so in dashboard also you can change that data at that particular time. Quick decision making. क्योंकि ये पूरा प्रोसेस बहुत स्ट्रीमलाइन हो जाता है पावर बीआई टूल पे, हम बहुत आसानी से डैशबोर्ड्स बना सकते हैं. और क्योंकि वो डैशबोर्ड्स बहुत आसानी से बन गए हैं, हम उनको जल्दी से हमारे क्लाइंट्स को केटर कर सकते हैं, और ताकि जो डिसीजन मेकिंग का प्रोसेस है वो फास्ट हो सके. सो इट हेल्प्स इन क्विक डिसीजन मेकिंग. graphical insights. So this is the most important feature of Power BI कि हमें graphical insights देने का प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे हम हमारे न्यूमेरिकल डेटा को ग्राफ्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं, चार्ट्स के थ्रू रिप्रेजेंट कर सकते हैं. दैट इज अ वेरी रीडेबल फॉर्म. नंबर्स आर नॉट वेरी रीडेबल और सबको नंबर्स रीड करने में प्रॉब्लम हो सकती है, बट चार्ट्स आर वेरी कन्वीनियंट वे टू पास ऑन आवर मैसेज कि हम कहना क्या चाह रहे हैं, एक्चुअली हम क्या स्टोरी बताना चाह रहे हैं. सो दैट स्टोरी कुड बी डिपिक्टेड फ्रॉम दोज विजुअल्स. सो ग्राफिकल इंसाइट्स बहुत इजीली हम दे सकते हैं थ्रू पावर बीआई. कंटिन्यूस मॉनिटरिंग फॉर रिजल्ट्स. सो हम हमारा जो डैशबोर्ड हमने बना दिया है, डिजाइन कर दिया है, उसको मॉनिटर करना कंटिन्यूसली, कुछ एरर नहीं आ रहा, मेंटेनेंस उसका. सो दैट इज वेरी इजी इन पावर बीआई. हिस्टोरिकल डेटा एनालिसिस. तो ना सिर्फ हम करंट डेटा के ऊपर एनालिसिस कर सकते हैं, हिस्टोरिकल डेटा के साथ भी हम प्ले अराउंड कर सकते हैं. बहुत सारा डेटा हम पावर बीआई के अंदर लोड कर सकते हैं, उसके साथ में ट्रांसफॉर्मेशंस करेंगे, उसके साथ में देखेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमारा डेटा कहना चाह रहा है, क्या हिस्ट्री से हमें ट्रेंड मिल रहे हैं जिनको हम रीड करके, जिनका एनालिसिस करके हम फ्यूचरिस्टिक में भी प्रिडिक्शंस कर सकते हैं, मे बी डैशबोर्ड को जो हमारी स्टोरी है उसको और एनहांस कर सकते हैं. सो दिस काइंड ऑफ एनालिसिस पावर बीआई गिव्स. फोरकास्टिंग प्रिडिक्शंस, जैसे कि अभी मैंने बताया, ऑन द बेसिस ऑफ हिस्टोरिक डेटा हम फ्यूचरिस्टिक प्रिडिक्शंस पे भी काम कर सकते हैं इन पावर बीआई डैशबोर्ड्स. ओके, सो दीज आर द फीचर्स विच पावर बीआई caters. Okay, next is it helps to answer the key questions: who, what, when, and how much. So these are the kind of basic question which we ask from data. अगर हमारे पास एक डेटा सेट है, उसका एनालिसिस शुरू करने से पहले हम कुछ इस तरह के क्वेश्चंस पूछते हैं कि ये डेटा क्या है, किससे रिलेटेड है, किस लिए है, कहाँ से जनरेटेड है, किसके यूज के लिए डेटा मतलब हम यूज कर सकते हैं, एंड कस्टमर क्या है, क्लाइंट रिक्वायरमेंट क्या है. कुछ इस तरह के क्वेश्चन जब हम अपने डेटा के सामने पुट ऑन करते हैं तो हमें इंसाइट्स मिलते हैं. हम देख सकते हैं कि अच्छा इस क्वेश्चन का आंसर हम ऐसे प्रेजेंट कर पाएंगे. सो दीज आर द काइंड ऑफ की क्वेश्चंस. तो पावर बीआई इस प्रोसेस को आसान बनाता है. इट हेल्प्स अस टू आंसर दिस की क्वेश्चंस. Otherwise, I think I have covered all the points. Any questions from this slide? Great. Now let's come to traditional Power BI approach. तो डेटा एनालिसिस की एक जर्नी होती है, एक अप्रोच होता है जिसको फॉलो करना इज अ मस्ट. मतलब
Yes, ma'am. Okay, sorry, apologies. There is some electricity problem in our locality. Okay, मैं अपनी स्क्रीन फिर से शेयर कर रही हूँ. Let me know जब स्क्रीन विजिबल हो तो. Thank you. Nishant, Mahima, are you there? तो अभी रिकॉर्डिंग डिस्टर्ब हुई थी क्या? Okay, okay, thank you. Fine. So let's start with the traditional BI approach. So in traditional BI approach, these are the steps a data analyst follow. So ये एक जर्नी है डेटा की जो हर डेटा एनालिस्ट फॉलो करता है while doing the data analysis procedure. ठीक है. So first is business identify the requirement. तो जो भी हमारा बिजनेस है, बिजनेस पीपल है, राइट? तो हम या तो क्लाइंट जो भी है हमारे, मे बी क्लाइंट कुड बी आवर कंपनी इटसेल्फ, कोई दूसरी कंपनी हमारी क्लाइंट हो सकती है. Then so we fix our meeting with the clients. ठीक है. We try to understand the requirements कि क्या requirements हैं. And this could be a very long and a thorough process, and that should be. Because जो भी हम requirement यहाँ से gather करेंगे, that will make a foundation जिस पे हम अपना डैशबोर्ड, हमारा जो डेटा का मॉडलिंग है, सारे सपोर्ट हम बिल्ड करेंगे. सो द फर्स्ट स्टेप, दिस शुड बी वेरी क्लियर एंड क्रिस्प. कई बार इस स्टेप को फॉलो करते समय क्लाइंट को नहीं पता होता है कि मे बी वॉट दे वॉन्ट. कई बार ऐसा होता है, क्लाइंट इज ऑल्सो नॉट क्लियर अबाउट कि वॉट दे वॉन्ट. उनको कुछ एक रफ आइडिया होता है जिसके बेसिस पे वो काम कर रहे होते हैं. सो वो रफ आइडिया हमें वो बता देते हैं दैट हम कुछ फ्रंट एंड में ऐसा पार्ट देखना चाहते हैं जहां पे हमें सो एंड सो डेटा का एनालिसिस चाहिए, राइट? सो नाउ एक डेटा एनालिसिस की डेटा एनालिस्ट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है दैट हम जो इनसाइट्स हमें मिले हैं क्लाइंट से, जो कि उन्होंने रफ आइडिया हमें दिया है, उसमें से क्वेश्चंस निकाल के लाना. हम जाके उनसे पूछेंगे दैट इज इट द थिंग कि डेटा हमारे पास इस फॉर्मेट में आएगा, इज इट कि आप डेटा को इस तरह से देखना चाहते हैं, नुएंसेस ऑफ डेटा, छोटी छोटी चीजें उनसे जाके पूछनी है. टिल द पॉइंट you are confident and a data analyst is confident, your team is confident that now we can start our work on the data. हम यहाँ से अब डेटा बिल्डिंग का काम जो है स्टार्ट कर सकते हैं, डैशबोर्ड बिल्डिंग यहाँ से स्टार्ट हो सकता है. टिल दैट पॉइंट दिस कुड बी अ लॉन्ग प्रोसेस, टू एंड फ्रो प्रोसेस विद अ क्लाइंट. ठीक है. तो यहाँ से हम डेटा गैदर करेंगे, डिटेल में पूरा डेटा गैदर करेंगे, उनसे क्रॉस क्वेश्चंस करेंगे, पूरा फाउंडेशन बनाएंगे, व्हाट इज डेटा ऑल अबाउट, हमें कैसे एनालिसिस करना है, क्या की पॉइंट्स हैं, क्या की मेट्रिक्स हैं, वो सब इस स्टेप में डिसाइड होंगे. देन business users submit the requirement to IT. So this is the step which happens in all the companies who are working in Power BI. Maybe कुछ startups में ये step missing भी हो सकता है because some startups don't work on very detailed data analysis procedure. तो अगर IT team है, so we submit our requirements to IT. They figure out कि अच्छा ये requirements हमारे client ने दिए हैं. उस रिक्वायरमेंट्स का असेसमेंट होता है. दे सी कि दे आर वैलिड और नॉट, वेदर इट इज फिजिबल कि हम इन रिक्वायरमेंट्स पे काम कर सकते हैं या नहीं, वो सब कुछ वैलिडेट करते हैं. देन वी मूव, आईटी क्या करती है, उससे रिलेटेड अब डेटा कलेक्ट करने की कोशिश करती है. सो इफ हमारे क्लाइंट ने हमें डेटा दे दिया है कि ओके आपको इसी डेटा सेट पे काम करना है, वेल एंड गुड. अगर हमारे क्लाइंट को नहीं पता है कि डेटा कहाँ से लाना है या फिर डेटा कहाँ से इकट्ठा करना है, तो दैट विल बी आवर रिस्पॉन्सिबिलिटीज. अब डेटा एक्सट्रैक्ट करने के भी बहुत सारे तरीके होते हैं. सो देयर आर थ्री टाइप ऑफ डेटा एक्सट्रैक्शन.
फर्स्ट इज कि हमारे क्लाइंट ने हमें डेटा दे दिया, ऑलरेडी अवेलेबल डेटा है, हमने उस डेटा को लिया, एक्सट्रैक्ट किया, उस पर ट्रांसफॉर्मेशंस परफॉर्म करे और उसको हमारे मॉडल्स में या फिर जो हमारा पावर बीआई प्लेटफॉर्म है उस पर लोड कर दिया. अनदर वे इज कि डेटा अवेलेबल नहीं है, वी हैव टू कलेक्ट दैट डेटा. सो हम आइडेंटिफाई करेंगे कि हमारा जो डेटा है वो आएगा कहाँ से. जिस तरह का डेटा भी हमें कलेक्ट करना है, व्हाट इज द सैम्पल ऑडियंस फॉर दैट डेटा. तो हम उस सैम्पल ग्रुप को आइडेंटिफाई करेंगे, उन तरह के लोगों को अप्रोच करेंगे, मे बी थ्रू अ सर्वे, मे बी थ्रू अ टीम विच विल अप्रोच दैट दोज पीपल. उनसे क्वेश्चंस करेंगे, हम जाके डेटा कलेक्ट करेंगे. सो दिस इज द सेकेंड स्टेप. थर्ड इज कि ऑलरेडी डेटा कहीं पे कलेक्टेड है, मे बी अ पब्लिक वेयर हाउस, मे बी हमारे कंपनी में किसी तरह का सर्वे हुआ हो और पास्ट में उस तरह का या उससे रिलेटेड डेटा कलेक्टेड हो हमारे पास में ऑलरेडी. सो हम उस डेटा को यूज कर सकते हैं. सो दीज आर द 3 ways. ठीक है, नाउ हमने डेटा कलेक्ट कर लिया है. सो दिस इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ डेटा एक्सट्रैक्शन. हमने डेटा को एक्सट्रैक्ट कर लिया है. ठीक है, फिर हम उस पर ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे, क्योंकि ऐसा कभी भी जरूरी नहीं होता है कि हमारे पास जो डेटा है एग्जैक्टली हमारे नीड्स के अकॉर्डिंग हमारे पास कलेक्ट हुआ है. हमेशा हमें उसमें कुछ ना कुछ मे बी गलतियां दिखाई देंगी, मे बी आउटलायर्स दिखाई देंगे, कुछ डर्टी डेटा होगा, कुछ डिस्क्रिपेंसीज दिखाई देंगी डेटा में, राइट. सो हमें उस पर वर्क ऑन करना है कि कैसे इनको एलिमिनेट करें और कैसे डेटा का एक क्लीन व्यू हमें मिले, राइट. तो हम उस पर ट्रांसफॉर्मेशंस लगाएंगे, कुछ चीज़ों को एलिमिनेट करेंगे, कुछ चीज़ों को एवरेज आउट करेंगे. अगर हमें दिख रहा है आउटलायर्स हैं तो आउटलायर्स को कैसे हैंडल करना है, वो सारी चीज़ें देखेंगे. सो दिस इज द पार्ट ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन. थर्ड इज लोड डेटा इनटू डेटा वेयर हाउस और मे बी बिल्ड अ मॉडल. सो अगर हमारे कंपनी में एक डेटा वेयर हाउस ऑलरेडी डिजाइंड है तो हम उस डेटा वेयर हाउस में डेटा लोड करेंगे. अदरवाइज पावर बीआई भी फीचर देता है कि पावर बीआई में हम डेटा लोड कर सकते हैं अप टिल अ सर्टेन लिमिट. तो अभी हम डिस्कस करेंगे वो लिमिट कितनी है, हम कितना डेटा पावर बीआई के अंदर लोड कर सकते हैं. एंड वी कैन बिल्ड मॉडल अराउंड दैट. मॉडलिंग भी अभी हम आगे कवर करेंगे, दैट हाउ वी मॉडल आवर डेटा. Wait. Now, next is IT creates report and dashboard based on requirements. So अब जब IT के पास में requirements आ गई हैं कि reports कैसे बनानी है, dashboard कैसा दिखना चाहिए, right? So IT will work on the. Just give me a minute. So IT will work on the basis of requirements कि dashboard कैसे बनाना है, what will be the metrics, किस तरह के visuals होंगे. So now we move on to the step of dashboard building. यहाँ पे हम actually जाएंगे, visuals तैयार करेंगे, उन पे काम करेंगे और जब dashboard तैयार हो जाएगा we will move on to the 5th step. हम अपने जो भी क्लाइंट है उससे उसका अप्रूवल लेंगे, क्योंकि हमने जो तैयार कर दिया वो हमारे अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पे हमने तैयार किया. हमें नहीं पता है कि वेदर इट इज मीटिंग द एग्जैक्ट रिक्वायरमेंट ऑफ आवर क्लाइंट. तो उसको इंश्योर करने के लिए वी विल गो टू आवर क्लाइंट. हम उनसे बोलेंगे कि हमने तैयार करा है. हमारा क्लाइंट व्यू करेगा. इन अ केस अगर उनको पसंद आ गया कि ओके यू हैव डन अ ग्रेट जॉब, this is what exactly we wanted, so they will approve. Or otherwise there will be some to and fro with the client कि हाँ ठीक है, there will be some changes, we will work on the changes and then get the approval. So this is the whole traditional life cycle जिससे हमारा data analysis होता है. We can call it a traditional BI approach. Okay, any questions from this part? मैम अगर बीच में अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो गया तो क्या फिर से हमको स्टेप 1 से हम कन्वर्ट करना पड़ेगा ना? नहीं,
आई कैन रिलेट कि ये तुम्हारा क्वेश्चन आ कहाँ से रहा है. सो जो हम ऑलरेडी कॉलेजेस में पढ़ते आ रहे हैं, विच इज सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल, जिसमें कि बीच में रिक्वायरमेंट चेंज होती है. सो दैट इज अ पार्ट ऑफ वेब डेवलपमेंट. सो वेब डेवलपमेंट में क्या होता है कि देर आर सर्टेन चांसेस कि क्लाइंट को लगा कि ठीक है बीच में रिक्वायरमेंट चेंज हो गई है एंड नाउ वी डोंट वांट सच एंड सच फीचर एंड उसमें ये चेंजेस चाहिए. सो दैट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स प्रोसेस, क्योंकि वहाँ पे हर चीज कोड से डिजाइन हो रही होती है. देर आर सर्टेन काइंड ऑफ कोड्स लाइक जावास्क्रिप्ट, Node.js and like different stacks they work on. So वो चीजें कोड में चेंज हो रही होती है. सो दैट मेक्स द प्रोसेस मोर कॉम्प्लेक्स. यहाँ पे हम सिर्फ डेटा को लाइक डेटा कलेक्ट कर रहे हैं, उसके अंदर ट्रांसफॉर्मेशंस कर रहे हैं. सो अगर मिड ऑफ द जर्नी रिक्वायरमेंट चेंज भी हो रही है, सो दैट विल नॉट अफेक्ट द होल प्रोसेस मेजरली. क्योंकि क्या रिक्वायरमेंट चेंज हो सकती है? रिक्वायरमेंट आई एम टॉकिंग अबाउट द मोस्ट ऑफ इट, कि मतलब मोस्ट से मोस्ट क्या रिक्वायरमेंट चेंज होएगी? यही होएगी कि मे बी नाउ हम कुछ इस तरह का विजुअल नहीं देखना चाहते, या मे बी ड्यू टू सिक्योरिटी हम इस तरह का डेटा हमारे डैशबोर्ड में नहीं दिखाना चाहते हैं, या कुछ और एडिशनल डेटा हम ऐड करना चाहते हैं. सो अगर एडिशनल डेटा भी ऐड करना है, सो देयर आर चांसेस कि उस तरह का डेटा कलेक्टेड हो जाएगा उस जर्नी में. और अगर नहीं हुआ है, सो वी कैन अगेन गो टू द स्टेप 3. वहां पे हम वापस से, अगर सर्टेन टाइप ऑफ डेटा कलेक्टेड नहीं है, तो हम वापस जाएंगे, रिव्यू करेंगे कि वो डेटा है या नहीं हमारे पास में. वी विल कलेक्ट दैट डेटा, वी विल एक्सट्रैक्ट इट, देन डू सम ट्रांसफॉर्मेशंस व्हिच आर रिक्वायर्ड, एंड देन हम उसको वापस लोड कर देंगे. सो दैट इज नॉट अ वेरी मेजर एफर्ट, राइट? तो नो मतलब अगर रिक्वायरमेंट हमारी मिड ऑफ द वे चेंज होती है, तो हम वापस से फर्स्ट स्टेप पे नहीं जाएंगे. क्योंकि इसीलिए मैंने आपको बोला फर्स्ट स्टेप विल बी अ वेरी लॉन्ग स्टेप एंड थोरो स्टेप, जहाँ पे हम बहुत ही क्रिस्प रिक्वायरमेंट इकट्ठा करेंगे. हम सारी चीजें इंश्योर करेंगे दैट दिस इज द ओनली थिंग यू वांट. एंड इट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट स्टेप, क्योंकि यहाँ पे मैंने यही चीज आपको बोली कि कई बार क्लाइंट्स को भी नहीं पता होता है व्हाट दे वांट एक्चुअली. उनको एक रफ आइडिया होता है कि ठीक है हमें ऐसा ऐसा व्यू देखना है हमारे डैशबोर्ड में, हमारे पास में ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट है, हमें एक्चुअली ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट सॉल्व करना है. नाउ यू सजेस्ट अस कि हम किस तरह से उसको सॉल्व करें. सो इट विल बी द जॉब ऑफ अ डेटा एनालिस्ट कि उस प्रॉब्लम स्टेटमेंट को सॉल्व करने के लिए हमें किस तरह के क्वेश्चन पूछना इंपॉर्टेंट है, किस तरह का डेटा हमें चाहिए होगा. सो दैट इज आवर रिस्पॉन्सिबिलिटी टू गैदर ऑल दिस इंफॉर्मेशन to ask the right question. So this is the skill we have to develop to ask the right question. Good. Have I answered your question, Satya? Am I audible? Okay. So let's move forward. Now let's start with Power BI. That actually what kind of interface Power BI looks like. So this is the ecosystem of Power BI. तो Power BI के इकोसिस्टम में 3 एलिमेंट होते हैं. फर्स्ट इज Power BI डेस्कटॉप, जिसके ऊपर अभी हम काम करेंगे. Power BI डेस्कटॉप इज एन एप्लीकेशन जिसको हम अपने सिस्टम पे डाउनलोड करके इंस्टॉल करेंगे एंड उसको यूज करेंगे. सो दिस इज अ फ्री सर्विस ऑफ माइक्रोसॉफ्ट Power BI, जिसको हम फ्रीली माइक्रोसॉफ्ट के वेबसाइट पे जाके डाउनलोड करके उस पर डैशबोर्ड बना सकते हैं. नेक्स्ट इज Power BI सर्विस. सो माइक्रोसॉफ्ट कॉस्ट फॉर Power BI सर्विस, जहाँ पे हमें माइक्रोसॉफ्ट के साथ में कुछ प्लान लेना पड़ेगा. सो वाई वी हैव टू टेक दैट, ताकि हम अपने जो भी हमने रिपोर्ट्स बनाई हैं उनको हम आसानी से शेयर कर पाएं
मैनेज कर पाए हमारे ऑडियंस को कि कौन से ऑडियंस वो डैशबोर्ड देख सकते हैं, कौन से नहीं देख सकते हैं. सो देयर आर सर्टेन काइंड ऑफ वर्क स्पेस अवेलेबल इन पावर BI सर्विस. उन वर्क स्पेस को हम मैनेज कर सकते हैं और उसका हमें कुछ प्राइस पे करना होता है टू माइक्रोसॉफ्ट. नेक्स्ट इज पावर BI मोबाइल. ये नया फीचर है जिसमें हम मोबाइल इंटरफेस पे हमारे डैशबोर्ड को दिखा सकते हैं. सो जिस तरह से हम पावर BI डेस्कटॉप पे वेब को ध्यान में रखते हुए, वेब का इंटरफेस ध्यान में रखते हुए पावर BI डैशबोर्ड को डिजाइन करते हैं, पावर BI मोबाइल में मोबाइल के इंटरफेस को ध्यान में रखते हुए उसको डैशबोर्ड को हम डिजाइन करते हैं. सो पावर BI मोबाइल हम इस सेशन में कवर नहीं करेंगे because it is a very new feature and not so popular right now. Power BI desktop important है. Power BI service कुछ points हम cover करेंगे which will be maybe the questions would be asked in interviews. उतना point हम cover करेंगे Power BI service का. Okay. Now installation. So अभी इस सेशन में इंस्टॉलेशन नहीं करेंगे, राइट? मैं आज शाम को जो हमारा डिस्कॉर्ड चैनल है, इस सेशन के बाद में एक लिंक सेंड कर दूंगी जहाँ पे आप क्लिक करोगे एंड पावर BI माइक्रोसॉफ्ट की एक वेबसाइट ओपन होएगी जहाँ पे पावर BI का डाउनलोड लिंक अवेलेबल होगा. उस पर आप क्लिक करोगे, वो जो सेटअप है वो डाउनलोड हो जाएगा आपके सिस्टम पे. उसको आपको इंस्टॉल कर लेना है एंड पावर BI डेस्कटॉप आपके सिस्टम पे ओपन हो जाएगा. इट इज़ अ वेरी इजी प्रोसेस. इंस्टॉलेशन भी बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है. यू जस्ट हैव टू क्लिक नेक्स्ट 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 अंटिल वी विल गेट द फिनिश बटन. इट इज़ अ वेरी इजी इंस्टॉलेशन प्रोसेस. तो ये कुछ सिस्टम रिक्वायरमेंट्स हैं. मतलब आपके पास में विंडोज़ जो है 7 से ऊपर होनी चाहिए. आई थिंक इट इज़ वेरी फिजिबल. विंडोज 7 तो अभी शायद कोई यूज़ नहीं कर रहा होगा. एंड विंडोज सर्वर 2008 R2 होना चाहिए. दैट इज डिफॉल्ट. अगर आप विंडोज 7 से ऊपर की विंडोज यूज़ कर रहे हैं, सो यू विल गेट दिस फंक्शनैलिटी. एंड इंटरनेट एक्सप्लोरर इज नॉट अ प्रॉब्लम एनी मोर. हमको हमेशा 9 से ऊपर ही मिलता है अभी. सो दीज आर द रिक्वायरमेंट्स. सो मैं क्लास के बाद लिंक शेयर करूंगी, आप तब इंस्टॉल कर लेना. ठीक है, अभी हम देखते हैं इंटरफेस कैसा दिखता है पावर BI का. कूल एवरीवन? ओके, सो नाउ वी विल स्टार्ट विद पावर BI इंटरफेस टूर. सो ये एक बेसिक स्क्रीन है. ये फर्स्ट स्क्रीन होती है पावर BI की. जब आप पावर BI ओपन करोगे तो कुछ ऐसी स्क्रीन आपको दिखाई देगी. ये है पहला इंटरफेस पावर BI का, जहाँ पे हमारे पास में ऊपर के टैब में, जो सबसे ऊपर टैब है, वहाँ पे हमारे पास ऑप्शंस अवेलेबल होंगे. फाइल, होम, इंसर्ट, मॉडलिंग, व्यू, ऑप्टिमाइज एंड हेल्प. इन सारे टैब्स में बहुत सारे ऑप्शंस हैं. उन ऑप्शंस को अभी हम एक्सप्लोर करेंगे कि वो ऑप्शंस है किस लिए, क्या काम करते हैं. देन ऑन द लेफ्ट हैंड साइड ऑफ आवर डैशबोर्ड, सॉरी आवर पावर BI डेस्कटॉप एप्लीकेशन, हमें ये 3 ऑप्शंस दिखाई देंगे. कुछ आइकन्स आपको दिख रहे हैं. इन आइकन्स को हम डिस्कस करेंगे कि आइकन्स हैं क्या, किस काम में आते हैं. देयर विल बी सम पेन्स ऑन द राइट हैंड साइड. तो ये पेन क्या काम आते हैं? फिल्टर है, विजुअलाइजेशन है, डेटा है, ये किस लिए यूज होते हैं, ये सारे ऑप्शंस को ये देखेंगे. ये जो मिडिल स्पेस है, दिस इज द एरिया जहाँ पे हम हमारे विजुअल्स को प्लेस करते हैं. यहाँ पे हम हमारे विजुअल्स को डिजाइन करते हैं. हमारा डैशबोर्ड कैसा दिखेगा, दिस इज द एरिया वेयर वी प्ले, राइट, वेयर वी डिजाइन एवरीथिंग. सो हम देखते हैं कि कैसे किस किस चीज़ों की हेल्प से हम यहाँ पे विजुअलाइजेशन जो है हमारा प्रोसेस, उसको हम करेंगे, राइट. सो फर्स्ट टैब जो हम डिस्कस करेंगे विच इज होम टैब. तो होम टैब किसी भी एप्लीकेशन का बहुत बेसिक टैब होता है जहाँ पे जो बेसिक फंक्शंस हम परफॉर्म करते हैं वो प्रेजेंट रहते हैं. तो सबसे पहले यहाँ पे क्लिपबोर्ड सेक्शन है. क्लिपबोर्ड सेक्शन में हमें सारे बेसिक फंक्शंस जो कि पेस्ट, कट, कॉपी, फॉर्मेट पेंटर, ये मिलेगा. फॉर्मेट पेंटर आपने पहले भी देखा होगा मे बी. अगर आपने एक्सेल यूज करी है या पावर पॉइंट यूज करा है, वहां पे भी ऑप्शन अवेलेबल रहता है. फॉर्मेट पेंटर इज बेसिकली कि अगर हमने एक चीज को डिजाइन कर दिया है, कोई फॉर्मेट सेट कर दिया है, मे बी
किसी टेक्स्ट फील्ड का फॉर्मेट सेट कर दिया है और सिमिलर फॉर्मेट हमें दूसरे टेक्स्ट फील्ड में चाहिए, तो हम बस उस वहां से फॉर्मेट कॉपी करेंगे और दूसरे में पेस्ट कर देंगे. सो दिस इज द फॉर्मेट पेंटर. नेक्स्ट इज गेट डेटा. सो यही ऑप्शन है जहां से हम हमारे जितने भी तरह के डेटा टाइप्स, मतलब जितने भी तरह के डेटा कनेक्शंस हैं वो बिल्ड करते हैं. सो यहाँ पे देयर आर सो मेनी ऑप्शंस विच पावर बीआई गिव्स. वो अभी हम देखेंगे आगे कि कितने तरह के ऑप्शंस हमें मिलते हैं पावर बीआई में डेटा इंपोर्ट करने के लिए. ठीक है. सो फ्रॉम हियर वी इंपोर्ट डेटा. अब कुछ वेरी फ्रीक्वेंट ऑप्शन होते हैं जैसे कि एक्सेल हो गया, वन लेक डेटा हब हो गया, एसक्यूएल सर्वर हो गया. ये कुछ बहुत फ्रीक्वेंटली डेटा कनेक्शन के लिए यूज होते हैं. सो पावर बीआई ने क्या किया, इन ऑप्शंस को हमारे डेटा टैब में एज एन कंपोनेंट ही दे दिया है. ठीक है. एज एन मतलब ऑप्शन हमें यहाँ पे विजिबल ही दे दिया. तो हम जब यहाँ पे एक्सेल वर्कबुक पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास में एक पॉपअप खुलेगा जहां से हम कोई भी एक्सेल वर्कबुक सेलेक्ट करके लोड कर सकते हैं पावर बीआई में. वन लेक डेटा हब में हम अज्योर से कोई भी फाइल अगर हम इंपोर्ट कर रहे हैं डायरेक्टली तो वो हम कर सकते हैं. एसक्यूएल सर्वर, अगेन आपका कोई सर्वर है एसक्यूएल का जहां पे आपने सारे के सारे अपने टेबल स्टोर करके रखे हुए हैं, तो हम उस सर्वर को कनेक्ट कर सकते हैं सीधा यहाँ से और वहां से टेबल्स को इंपोर्ट कर सकते हैं. नेक्स्ट इज एंटर डेटा. सो अगर हमें कोई भी डेटा टेबल है जो कि हमें मैनुअली बनानी है, राइट, उसको हम कहीं से इंपोर्ट नहीं करना चाहते, हम उसको चाहते हैं कि डैशबोर्ड में हम मैनुअली ही क्रिएट करें. सो ये ऑप्शन मैनुअल टेबल्स बनाने के लिए काम आता है. डेटा वर्स, यहाँ पे जब आप क्लिक करोगे तो एक पॉपअप खुलेगा जो कि शो करेगा आपने रिसेंटली कहाँ से डेटा इंपोर्ट करा है इन डैशबोर्ड. ठीक है. हमें डेटा वर्स के अंदर वो सारी चीजें दिखाई देंगी. सॉरी, आई वाज टॉकिंग अबाउट, ओके, डेटा वर्स is not very commonly used. Data verse is again it is a different data connection source, right? I was talking about recent sources जहाँ पे आप क्लिक करोगे so you will get a window pop up and there you can see कि आपने recently किस डेटा सोर्स पे काम किया है. Next is transform data. तो जो कि मैं आपको जो चीज मैं आपको बता रही थी कि we can transform data in Power BI. तो एक एप्लीकेशन है विच इज कॉल्ड पावर क्वेरी एडिटर. जब हम ट्रांसफॉर्म डेटा पे क्लिक करेंगे वी विल एबल टू ओपन पावर क्वेरी एडिटर जहां पे हमारा डेटा ट्रांसफॉर्मेशन होएगा. सो वी विल सी इन फ्यूचर सेशंस कि हम किस तरह से पावर क्वेरी एडिटर के अंदर डेटा ट्रांसफॉर्मेशन कर सकते हैं. नेक्स्ट इज आर रिफ्रेश ऑप्शन. सो बेसिकली क्या होता है कि हमने एक बार डेटा लोड कर दिया, हमने डैशबोर्ड डिजाइन कर दिया. सो इट इज नॉट इम्पॉर्टेंट कि सिर्फ डैशबोर्ड पे एक ही बार डेटा लोड होएगा और एक ही बार डैशबोर्ड डिजाइन होएगा. सो दैट डैशबोर्ड कुड बी रिफ्रेश्ड इन सम फ्रीक्वेंसी. इट कुड बी डेली, वीकली, मंथली, ईयरली. जिस भी फ्रीक्वेंसी में हमारा नया डेटा आएगा उस फ्रीक्वेंसी में हमें वो डेटा रिफ्रेश करना पड़ता है हमारे डैशबोर्ड में, सो दैट जो हमारे विजुअल डिजाइंड है वो अप टू डेट डेटा डिस्प्ले कर सकें. राइट. तो उसके लिए जो भी हमारे सोर्सेज से डेटा कनेक्टेड है वहां पे हम नया डेटा लोड कर देते हैं एंड व्हेन वी विल क्लिक रिफ्रेश हियर तो जो भी हमारे डेटा मॉडल्स हैं उनमें नया डेटा स्टोर हो जाएगा. देन वो सारा डेटा हमारे विजुअल्स में विजिबल हो जाएगा. राइट. तो रिफ्रेश ऑप्शन उसके काम आता है. नेक्स्ट इज न्यू विजुअल. जब हम विजुअल डिजाइन करने लगेंगे देन वी विल यूज दिस ऑप्शन न्यू विजुअल. यहाँ पे क्लिक करेंगे तो हम नया विजुअल स्क्रीन पे ऐड कर सकते हैं और उसमें जो भी हमें डेटा ऐड करना है वो हम कर सकते हैं. नेक्स्ट इज टेक्स्ट बॉक्स. सो टेक्स्ट बॉक्स एक बहुत बेसिक एलिमेंट है जो हमें सारे माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट में मिल जाता है, जहाँ पे हम कुछ भी हमें टाइटल ऐड करना है या फिर कोई भी एलिमेंट ऐड करना है सो वी कैन टेक लाइक क्लिक ऑन टेक्स्ट बॉक्स और उसको हम स्क्रीन पे ऐड कर देंगे और वहाँ पे हम जो भी एलिमेंट हम ऐड करना चाह रहे हैं वो चीज़ हम परफॉर्म कर लेंगे. दिस इज द ऑप्शन ऑफ मोर विजुअल. मोर विजुअल यहाँ पे जब हम क्लिक करेंगे तो
क्या होता है कि पावर बीआई हमें कुछ लिमिटेड अमाउंट ऑफ विजुअल देता है ताकि हम डैशबोर्ड बना सकें. इफ यू हैव रिक्वायरमेंट कि आपको कुछ एडिशनल विजुअल चाहिए टू मेक योर डैशबोर्ड, तो पावर बीआई एक ऑप्शन देता है कि आप पावर बीआई का ही क्लाउड है जहाँ पे बहुत सारे विजुअल्स अवेलेबल हैं, आप उनको इंस्टॉल कर सकते हो पावर बीआई के अंदर और उनको यूज कर सकते हो. अदरवाइज इफ यू वांट एनी एक्सटर्नल विजुअल्स आल्सो, तो आप उसको वेब पे जाके सर्च करके डाउनलोड करके और फिर यूज कर सकते हो अपने डैशबोर्ड में. ठीक है, ये ऑप्शंस भी पावर बीआई में अवेलेबल है कि आप एक्सटर्नल विजुअल्स को यूज कर सकते हो. नेक्स्ट इज न्यू मेजर. सो there is something called DAX, which is used in Excel and Power BI as well. तो जब हम कोई भी DAX लिखते हैं तो Power BI में उसको हम दोनों नामों से बुलाते हैं. That is, हम उसको measure भी बोल सकते हैं, हम उसको DAX भी बोल सकते हैं. It is one and the same thing. तो कोई भी नया measure या फिर DAX लिखना हो हमें, तो हम new measure पे क्लिक करते हैं. एक रिबन खुलती है ऊपर जहां पे हम हमारा फॉर्मूला लिखते हैं डैक्स का, मेजर क्रिएट करते हैं और मतलब उसको एंटर करते हैं तो वो सेव हो जाता है हमारे पावर बीआई में. एंड देन जब भी हमें उस मेजर को यूज करना है हम उसको विजुअल में यूज कर सकते हैं. देयर आर सर्टेन ऑप्शंस जहां पे हम क्विक मेजर्स बना सकते हैं. हम लाइक क्विक मेजर इज नॉट वेरी रिकमेंडेबल, बट यहाँ पे हम हमारे KPIs को जब हम एंटर करते हैं क्विक मेजर में तो वो हमें ऑलरेडी एक मेजर बना के दे देता है. कई बार उसमें बहुत सारी मिस्टेक्स होती हैं, हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग मेजर नहीं बनते. सो क्विक मेजर इज नॉट वेरी रिकमेंडेबल ऑप्शन. नेक्स्ट इज सेंसिटिविटी, यू विल नॉट यूज एनीवे. सो लेट्स डिस्कस पब्लिश. सो दिस इज द ऑप्शन जिसके थ्रू हम हमारी रिपोर्ट्स को सर्विस पे पब्लिश कर सकते हैं, जो कि मैंने बात अभी करी. पावर बीआई सर्विस एक इकोसिस्टम का पार्ट है. सो पावर बीआई सर्विस पे जब हमें हमारी रिपोर्ट पब्लिश करनी होती है ताकि हम उसको दूसरे लोगों तक शेयर कर सकें, दूसरी टीम्स को शेयर कर सकें, उनका जो भी एक्सेस उसको मैनेज कर सके वहां पे, उसको करने के लिए हम इस ऑप्शन का यूज करेंगे, पब्लिश. एनी क्वेश्चन? Okay. Next is insert tab. So insert से हमें समझ में आ रहा है there will be some options जिसको हम यहाँ से पिक करके हमारे मेन स्क्रीन पे कुछ insert ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे विजुअलाइजेशंस से रिलेटेड. So first is new page. न्यू पेज से हमें समझ में आ रहा है देयर जैसे जो हमने जो व्यू देखा था जिसमें एक सेंटर स्टेज एरिया था, दैट स्टेज एरिया इज अ ब्लैंक एरिया. हम वहां पे एक पेज बनाएंगे. फर्स्ट स्टेप इज दैट. सो वो पेज बनाने के लिए वी विल यूज दिस ऑप्शन न्यू पेज, राइट. इस न्यू पेज पे जैसे हम क्लिक करेंगे तो एक नया पेज बन जाएगा एंड वी कैन यूज दैट पेज टू डिजाइन एंड प्लेस आवर विजुअल्स. ठीक है. नेक्स्ट इज न्यू विजुअल. अब अगेन होम टैब पे भी ऑप्शन अवेलेबल है. दिस इज द सेम ऑप्शन. इंसर्ट में भी हम न्यू विजुअल को सिमिलर तरीके से यूज कर सकते हैं जैसे कि होम टैब पे किया था हमने. हम इस पे क्लिक करेंगे, एक नया विजुअल, आई थिंक होम टैब पे नहीं था, जस्ट अ मिनट. हाँ था, सॉरी, आई गॉट कंफ्यूज्ड. सो दिस इज द सेम ऑप्शन. होम टैब पे भी रहता है, इंसर्ट टैब पे भी रहता है. हम दोनों में सेम तरीके से इसको यूज कर सकते हैं. मोर विजुअल, अगेन दिस इज अ रिपीटेड ऑप्शन विच इज देयर इन होम टैब एज वेल एज इन इंसर्ट टैब. नाउ नेक्स्ट इज Q&A. सो Q&A इज एन ऑप्शन जहां पे हम जब हम इस पे क्लिक करेंगे सो एक विजुअल ऐड हो जाएगा हमारी स्क्रीन पे जहां पे हम हमारे KPIs को एंटर कर सकते हैं. जैसे कि KPI इन सेंस कि हमें कोई मे बी चार्ट बनाना है. उस चार्ट को बनाने के लिए हम चाहते हैं कि हम वो चार्ट बनाएं ऑन द बेसिस ऑफ
हमें एक्स एक्सिस पे ईयर्स चाहिए और वाई एक्सिस पे चाहिए मार्क्स ऑफ अ स्टूडेंट, कि हर साल में किस तरह के मार्क्स आए हैं, कैसे मार्क्स आए हैं एक स्टूडेंट के। तो हम एक्स एक्सिस पे चाहते हैं कि ईयर आ जाए और वाई एक्सिस पे चाहते हैं कि वहां पे स्टूडेंट के सब्जेक्ट्स आ जाए मे बी, राइट। तो हम क्या करेंगे, वहां पे जाएंगे Q&A में और वहां पे टाइप कर देंगे दैट आर एक्स एक्सिस विल बी दिस एंड दिस एंड वाई एक्सिस विल बी दिस एंड दिस, और हम एंटर करेंगे तो वो चार्ट हमें बना के अपने आप दे देगा, राइट। सो दिस इज द ऑप्शन ऑफ Q&A. इट इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन. नेक्स्ट इज की इन्फ्लुएंसर. सो की इन्फ्लुएंसर क्या करता है कि हमारा जो डेटा सेट है, जो भी डेटा हमने लोड करा है पावर BI के अंदर, सो उसमें जो भी की मैट्रिसेस हैं जिस पे हम काम कर सकते हैं, उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, किस तरह से हम उनको और कौन कौन से विजुअल बनाने के लिए हम उनको यूज कर सकते हैं, वो आइडेंटिफाई करके हमें बता देगा की इन्फ्लुएंसर ऑप्शन, राइट. सो इट इज अ वेरी हेल्पफुल ऑप्शन. हम उसको यूज कर सकते हैं इफ वी आर क्लूलेस कि हमें कहाँ से स्टार्ट करना चाहिए, कैसे विजुअल्स बनाने चाहिए. सो इट हेल्प्स अस टू आइडेंटिफाई रिलेशनशिप बिटवीन आवर डेटा. नेक्स्ट इज decomposition tree. So decomposition tree is again a type of visual option. इसको जब भी हम क्लिक करेंगे तो हमारे पास में एक ट्री आ जाएगा, और उस ट्री को ऑन द बेसिस ऑफ डेटा, जैसा भी हमारे पास डेटा है, वो ट्री एक्सपैंड होता जाएगा वेन एवर वी क्लिक ऑन सम ऑप्शन इन द ट्री. ये हम एक्सप्लोर करेंगे कि कैसे ये ट्री काम करता है इन आवर फ्यूचर सेक्शंस. नेक्स्ट इज नरेटिव. ओके, सो नरेटिव गिव्स अस द ऑप्शन, जो भी हमारे रिसेंट डेटा सेट्स है जिस पे हम काम कर रहे थे, वो सारी चीजें हमें शो कर देगा कि जो भी रिसेंट डेटा सेट्स पे हमने काम किया है वो हमें विजिबल हो जाएंगे इन नरेटिव. पेजिनेटेड रिपोर्ट. तो क्या होता है कि हमारे पास में बहुत सारा डेटा होता है और काफी ज्यादा लेंथ में होता है एट अ टाइम, राइट. एंड कई बार ये पॉसिबल नहीं होता है कि हम उस डेटा को एक पेज पे दिखा सके. सो बट देयर कुड बी अ रिक्वायरमेंट कि हमें उस डेटा को एक पेज पे देखना है, राइट. तो हम कुछ ऐसी रिपोर्ट जनरेट कर सकते हैं जिनको हम बोलते हैं पेजिनेटेड रिपोर्ट, जो कि डेटा को पेज वाइज दिखाने में हेल्प करती है, राइट. ताकि हम उस डेटा को प्रिंट करने में भी यूज कर सकें, शेयर करने के लिए यूज कर सके. तो वो पेजिनेटेड डेटा हमें बना के दे देता है ये ऑप्शन. नेक्स्ट इज पावर एप्स, पावर ऑटोमेट. सो दीज आर द काइंड ऑफ प्लेटफॉर्म जिसको हम पावर BI के साथ कोलैब करके यूज कर सकते हैं. पावर एप्स, पावर ऑटोमेट के बारे में इफ यू गाइज हैव हर्ड, सो दीज आर ऑल्सो माइक्रोसॉफ्ट प्रोडक्ट्स जो कि विजुअलाइजेशन के काम आते हैं. दे हैव सो मेनी अदर एडवांस ऑप्शंस एज वेल. मैंने काफी लिमिटेड काम किया है पावर एप्स के ऊपर कर रहा है, ऑटोमेट के ऊपर तो वो भी नहीं करा. सो इफ एनीवन हैव इंटरेस्ट तो इसके ऊपर आप जाके नेट पे पढ़ सकते हो. देयर आर सो मेनी आर्टिकल्स व्हिच टेल्स अबाउट की हाउ पावर एप्स एंड पावर ऑटोमेट कैन वर्क विद पावर BI, राइट. दिस इज अ वेरी इंटरेस्टिंग ऑप्शन वी गेट. नेक्स्ट इज टेक्स्ट बॉक्स. अगेन दिस वाज अवेलेबल ऑन होम टैब. हमें यहाँ पे भी ये ऑप्शन मिलता है. नेक्स्ट इज बटन. बटन्स जैसे कि हमें समझ में आ रहा है, एंड ये बहुत ही बेसिक कंपोनेंट है फ्रंट एंड का, कि बटन्स जैसे हम सुनते हैं तो हमारे दिमाग में एक विजुअल आता है कि बटन्स है तो मतलब कोई फंक्शनैलिटी है, राइट. कुछ ना कुछ फंक्शन परफॉर्म कर रहा है वो चीज. सो दिस इज करेक्ट. यहाँ पे हमें ऐसे ही ऑप्शंस मिलेंगे. कुछ बटन्स हमें मिलेंगे बाय डिफॉल्ट बने हुए पावर BI की तरफ से, जिनको हम ऐड कर देंगे जब हमारे डैशबोर्ड पे, तो वो सर्टेन टाइप ऑफ फंक्शन परफॉर्म करेंगे अकॉर्डिंग टू विच दे हैव डिजाइन. मतलब जो भी पर्पस के लिए दे हैव बीन डिजाइंड, वो पर्पस वो परफॉर्म करेंगे हमारे डैशबोर्ड पे. नेक्स्ट इज शेप्स. अगेन अगर आपको अपने डैशबोर्ड पे शेप्स ऐड करने हैं किसी भी तरह के, so you can select any shape and add on the dashboard. Next is image.
इमेज आपको ऐड करनी है अपने डैशबोर्ड पे, यू कैन सेलेक्ट दिस ऑप्शन एंड वी कैन गेट द इमेज ऑन द डैशबोर्ड. Clear this to everyone? Okay. So, now what is my expectation with you guys? जो भी आज हमने डिस्कस किया है, जो भी इंटरफेस जैसे आज हमने डिस्कस किया है, तो जब मैं ये लिंक ऐड करूंगी डिस्कॉर्ड चैनल पे, राइट, सो यू गाइज विल डाउनलोड पावर बीआई और आप उस इंटरफेस को आज एक्सप्लोर करोगे जैसे भी आज हम डिस्कस कर रहे हैं. तो एटलीस्ट आज आपका ये काम है कि आप जाके वो सारे ऑप्शंस एक बार क्लिक करोगे, ये सारे ऑप्शंस, राइट, जो भी हैं ऑप्शंस अवेलेबल हैं उन पे क्लिक करोगे, देखोगे कि किस तरह की विंडो खुल रही है, क्या ऑप्शंस आपको और विजिबल हैं. मे बी हमसे कुछ यहाँ क्लास में मिस हो गया है तो और मे बी आपको नहीं समझ में आ रहा है कि ये कैसे हो रहा है, तो आप क्लास में दूसरे दिन आके क्वेश्चन पूछ सकते हो, राइट, एंड वी कैन डिस्कस दैट इन नेक्स्ट क्लास कि मे बी कुछ मिस हो गया फिर प्रीवियस क्लास में, तो हम इस क्लास में कवर कर लेंगे. कूल. You all have to be proactive. I will not give like huge task. मैं कुछ छोटे टास्क दूंगी ताकि आप कनेक्टेड रहो, क्योंकि हमारे जो सेशंस हैं वो वीकेंड टू वीकेंड होंगे. सो देयर कुड बी चांसेस कि चीजें भूल जाते हैं हम कई बार, राइट, लंबा टाइम हो जाता है, काफी गैप होता है, तो हम चीजें भूल जाते हैं. सो दैट आप रिवाइज कर सको पूरे वीक में कुछ ना कुछ, तो मैं छोटे छोटे टास्क आपको क्लास के एंड पे असाइन करूंगी. गॉट इट? And you have to make sure that you will complete those tasks before the next class. Cool. मैम. Yes. मैम प्लीज एक बार की इन्फ्लुएंसर्स एक बार आप रिपीट करेंगे? Sure. So की इन्फ्लुएंसर क्या है कि जब हम की इन्फ्लुएंसर्स पे क्लिक करेंगे तो हमारे डेटा सेट्स जो हैं, मे बी हमारे पास में कभी भी एक टेबल तो होएगी नहीं, मल्टीपल टेबल्स होंगे हमेशा. सो मल्टीपल टेबल्स के बीच में किस तरह का रिलेशनशिप है, सारे जो वेरिएबल्स हैं, मतलब वेरिएबल्स इन सेंस हियर जो कॉलम्स हैं उनके बीच में क्या रिलेशनशिप है, उस कॉलम के अंदर जो डेटा है उसको हम किस तरह के मेट्रिक के लिए यूज कर सकते हैं, कैसी केपीआई हम डिजाइन कर सकते हैं. की इन्फ्लुएंसर ऐसी चीजें आइडेंटिफाई करके हमें एक स्क्रीन पे बता देता है. कह सकते हो कि एक बहुत ही शॉर्ट समरी दे देता है हमारे डेटा की. सो दिस इज अ काइंड ऑफ ऑप्शन जो कि पावर बीआई ने बहुत पहले दे दिया था. जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हम लोग आजकल देख रहे हैं, सॉरी आई एम टॉकिंग अबाउट जो भी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग से जो हम इंटेलिजेंस बना रहे हैं, जैसे कि चैट जीपीटी हो गया, राइट, जो कि एनएलपी मॉडल पूरी तरह से यूज करता है, वही कुछ मॉडल्स यूज करके पावर बीआई ने फीचर हमें प्रोवाइड करा था, जैसे Q&A हो गया, की इन्फ्लुएंसर हो गया. ये हमारे डेटा को रीड करके हमें बता देते हैं कि ठीक है ये इस तरह के कॉलम्स आपके पास अवेलेबल हैं, इन टेबल्स के बीच में ऐसे रिलेशनशिप बन सकते हैं. तो वो पॉसिबिलिटी या फिर कुछ एग्जाम्पल्स हमें एज इन रिपोर्ट छोटी से समरी की तरह हमें प्रोवाइड कर देते हैं की इन्फ्लुएंसर ऑप्शन. ओके, let's move to next tab, that is desktop, sorry, modeling tab. So modeling से आपको समझ में आ रहा है कोई चीज बन रही है, यहाँ पे कोई चीज मैनेज हो रही है, मॉडल हो रही है, राइट. सो मॉडलिंग में ऐसे ही ऑप्शंस हमें मिलेंगे. फर्स्ट इज मैनेज रिलेशनशिप, क्योंकि डेटा मॉडलिंग में हम डिफरेंट टेबल्स के बीच में रिलेशनशिप बनाते हैं, उनमें जॉइंस लगाते हैं, राइट, उनको उनमें और ट्रांसफॉर्मेशन लगाते हैं. तो वो सारे रिलेशनशिप मैनेज करने के लिए कि कौन सी टेबल में कैसा जॉइन लगेगा, किस कॉलम के बेसिस पे लगेगा, सो वो हम मैनेज रिलेशनशिप ऑप्शन में एक्सप्लोर करते हैं एंड मैनेज करते हैं. नेक्स्ट इज न्यू मेजर. अगेन दिस इज अ रिपीटेटिव ऑप्शन. न्यू मेजर, यहाँ से भी हम नया मेजर डैक्स क्रिएट कर सकते हैं. क्विक मेजर,
This is again a repetitive option. This is available in insert tab as well. New column. This is a new option. So new column क्या करता है कि जो भी हमारा डेटा टेबल है उसमें हमें सडनली एक रिक्वायरमेंट आया दैट वी हैव टू ऐड अ कॉलम, तो हम इसको यूज करके एक नया कॉलम ऐड कर सकते हैं. सो यहाँ जब हम कॉलम ऐड करेंगे सो वी हैव टू राइट सम फॉर्मूला. मे बी अगर हम कोई दूसरे कॉलम्स ऐड करके नया कॉलम ऐड कर रहे हैं तो हम फॉर्मूला लिख देंगे दैट ऐड लाइक ए कॉलम ए प्लस कॉलम बी. तो कॉलम ए प्लस कॉलम बी बना के ये तीसरा कॉलम बना देगा सी, जिसमें कॉलम ए और बी का सम हो रहा होगा. सो दिस इज हाउ वी कैन क्रिएट न्यू कॉलम. न्यू टेबल अगेन अगर हमें मैनुअली नई टेबल क्रिएट करनी है सो वी कैन यूज दिस ऑप्शन न्यू टेबल. नेक्स्ट इज न्यू पैरामीटर्स. सो पैरामीटर इज समथिंग जो कि हमारे डेटा में से छोटे छोटे चंक्स निकाल के हमें साइड में दे देता है. लाइक दैट चंक्स कुड बी यूज्ड इन विजुअलाइजेशन और डेटा एक्सप्लोरेशन. तो एक एनालिसिस होता है किसी भी डेटा एनालिसिस प्रोसेस में, दैट इज कॉल्ड व्हाट इफ एनालिसिस. उस व्हाट इफ एनालिसिस के लिए पैरामीटर्स जो हैं बहुत यूजफुल होते हैं. वी विल सी हाउ टू क्रिएट पैरामीटर्स इन फ्यूचर सेशंस. ओके, नाउ नेक्स्ट इज मैनेज रूल्स. दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग क्योंकि पावर बीआई का एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट फीचर एंड कंपोनेंट होता है, दैट इज द डेटा सिक्योरिटी. तो डेटा सिक्योरिटी जो आपको मैनेज करनी है विच इज ऑल्सो कॉल्ड रो लेवल सिक्योरिटी. तो रो लेवल सिक्योरिटी को मैनेज करने के लिए हम मैनेज रोल्स ऑप्शन का यूज करते हैं. यहाँ से हम डिसाइड कर सकते हैं कि अगर एक पर्टिकुलर पर्सन ने डैशबोर्ड के अंदर लॉग इन किया है तो वो किस लेवल का और कितना डेटा डैशबोर्ड में देख सकता है. उस डेटा को मैनेज करने के लिए हम मैनेज रूल्स का यूज करेंगे. व्यू एज. तो व्यू एज एंड मैनेज रोल हैंड इन हैंड काम करते हैं. जब हम रोल्स को डिजाइन कर देते हैं, रोल्स को बना देते हैं, उन रोल्स को कितना डेटा एक्सेस है वो डिसाइड कर देते हैं. सॉरी, मैंने आई थिंक स्लाइड चेंज कर दी. राइट. सो हम ये डिसाइड कर लेते हैं कि रोल्स किस तरह से डेटा देख सकते हैं, कितना डेटा देख सकते हैं. तब हम व्यू एज का यूज करते हैं टू टेस्ट दैट रोल कि वो रोल सच में उतना ही डेटा देख पा रहा है या उससे ज्यादा कुछ डेटा दिख रहा है उसको. तो व्यू एज पे जब हम क्लिक करते हैं और हम उस पे वो रोल सेलेक्ट कर लेते हैं तो वो डैशबोर्ड उतना ही डेटा दिखाने लगता है जितना उस रोल को परमिटेड होता है. सो हम उसकी टेस्टिंग के लिए व्यू एज यूज करते हैं. नेक्स्ट आर सम Q&A ऑप्शंस, लैंग्वेज, लिंग्विस्टिक्स, स्कीमा. So these are very least used option, but again these options are used जहाँ पे हम कुछ prompt देते हैं. हम मतलब Q&A तो मैंने आपको explain कर दिया. Q&A में हम एक विंडो खुलती है, उसमें हम prompt देते हैं कि we need so and so visual, जिसमें हम ऐसा डेटा दिखाना चाह रहे हैं and that they create a chart for us. So these are the similar type of options. You can explore them. Okay. और अगर कोई क्वेश्चन हो तो आप नेक्स्ट क्लास में पूछ सकते हो. नेक्स्ट इज व्यू टैब. सो लेट्स टेक अ 5-minute ब्रेक और आप थोड़ा सा स्ट्रेच कर लो, घूम लो, उठ के थोड़ा इधर उधर, एंड देन वी विल कंटिन्यू फॉर अनदर आवर. ओके. Okay. So am I audible? Cool. Now we will cover the view tab. तो व्यू में क्या है कि नाम से पता पड़ रहा है we will be viewing something. जो भी ऑप्शन है उनसे जो भी करेंगे हम कुछ व्यू कर रहे होंगे इन आवर रिपोर्ट. सो फर्स्ट इज थीम्स. जब हम कोई भी रिपोर्ट या डैशबोर्ड डिजाइन करते हैं
तो उसमें हम कुछ कलर्स यूज करते हैं टू मेक इट मोर विजुअली अपीलिंग एंड अट्रैक्टिव. तो पावर बी आई डेस्कटॉप जो एप्लीकेशन है हमें ऑलरेडी डिजाइंड कुछ थीम्स प्रोवाइड करती है. सो वी कैन यूज दीज डिफॉल्ट थीम्स, अदरवाइज वी कैन मेक आवर ओन थीम, राइट. नेक्स्ट इज पेज व्यू. ओके, यस. सो पेज व्यू से हम लोग डिफरेंट लेआउट पे चेंज कर सकते हैं. जैसे कि ये ऑप्शन पावर आई एम सेइंग वर्ड में भी अवेलेबल होता है. हम डिफरेंट लेआउट्स में पेज को देख सकते हैं, राइट. सो दिस इज द सिमिलर ऑप्शन. मोबाइल लेआउट. सो जो चीज़ मैं डिस्कस करी थी इकोसिस्टम में, देयर इज समथिंग कॉल्ड पावर बीआई मोबाइल विच इज़ अ वेरी न्यू फीचर. तो उसको डिज़ाइन करने के लिए हम मोबाइल लेआउट पे क्लिक करके और फिर मोबाइल लेआउट को डिज़ाइन कर सकते हैं कि अगर पावर बीआई किसी ने मोबाइल में व्यू किया ये मेरा डैशबोर्ड तो किस तरह से दिखना चाहिए, राइट. नेक्स्ट इज गाइडलाइंस. सो गाइडलाइन इज समथिंग अ वेरी बेसिक फीचर जो कि हमारे पूरे पेज पे रूल्स लाइंस हमें दे देता है, जिसके हेल्प से हम लोग हमारे विजुअल्स को प्लेस कर सकते हैं. उनके बीच में जो स्पेसिंग है उनको यूनिफॉर्मली डिवाइड कर सकते हैं. सो गाइडलाइंस उस यूज में आती है. सो इट कुड डिपेंड ऑन पर्सनल चॉइस कि अगर आपको गाइडलाइन यूज करनी है, सो यू कैन क्लिक ऑन दिस चेक बॉक्स एंड गाइडलाइंस विल अपीयर ऑन योर स्क्रीन. स्नैप टू ग्रिड. सो स्नैप टू ग्रिड ऑप्शन हमें हेल्प करता है, मतलब गाइडलाइंस और स्नैप टू ग्रिड हैंड इन हैंड चलते हैं. स्नैप टू ग्रिड हमें क्या हेल्प करता है कि जो भी हमारे विजुअल्स हैं, तो जैसे ही हम स्नैप टू ग्रिड को चेक करेंगे तो हमारे विजुअल्स हमारे जो रूल्ड लाइंस हैं उनके अकॉर्डिंग सेट हो जाएगा. जो भी नियर बाय रूल्ड लाइन है उस पर सेट हो जाएगा. सो दिस हेल्प्स अस टू बाय डिफॉल्ट by default arrange our objects on the screen. ठीक है. लॉक ऑब्जेक्ट्स, तो इस ऑप्शन को हम तब यूज कर सकते हैं जैसे कि जब हमने पूरा डैशबोर्ड डिजाइन कर दिया, नाउ वी वांट कि अब उस पूरे अरेंजमेंट में कुछ भी चेंज नहीं होना चाहिए, नथिंग शुड बी मूव्ड हियर एंड देयर. तो हम लॉक ऑब्जेक्ट को इनेबल कर सकते हैं ताकि हमारे जो सारे ऑब्जेक्ट्स हैं जिस भी जगह पे वो लॉक हो जाए वहाँ पे, ताकि कोई भी चेंजेस हम और इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते हैं उस पर. नेक्स्ट इज फिल्टर्स, जो कि मैं आपको फर्स्ट इंटरफेस वाली जो मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखाई थी उसमें एक पेन दिखाया था राइट हैंड साइड पे विच इज कॉल्ड फिल्टर्स, जहाँ पे बहुत सारे लेवल्स पे अलग अलग फिल्टर्स हम लगा सकते हैं हमारे रिपोर्ट में. वो हम डिटेल में आगे देखेंगे कि कैसे फिल्टर्स लगाते हैं और उस पर कैसे काम करते हैं. तो ये ऑप्शन उस पेन को इनेबल करने के लिए होता है. ओके. नेक्स्ट इज बुकमार्क. अगेन बुकमार्क इज अनदर काइंड ऑफ टॉपिक जिसपे एक पूरा डिस्कशन हो सकता है. सो उस पेन को इनेबल करने के लिए वी विल यूज दिस बुकमार्क ऑप्शन. अभी हम फ्यूचर क्लासेस में देखेंगे दैट हाउ वी यूज बुकमार्क्स. नेक्स्ट इज सिलेक्शन. Selection helps us to select individual components visible on our report or dashboard. तो कोई भी कंपोनेंट है उस पे हम सेलेक्ट करके उसको हाइड करना है, विजिबल रखना है, किस तरह के उसका ऑर्डर चेंज करना है, जो अरेंजिंग ऑर्डर है स्क्रीन पे वो चेंज करना है, उसको फ्रंट में लाना है या बैकवर्ड शिफ्ट करना है, वो सारे हम सिलेक्शन पेन के थ्रू कर सकते हैं. सो इसका अगेन बुकमार्क्स एंड सिलेक्शन पेन गो हैंड इन हैंड, दोनों का काम एक साथ होता है. So we will see in future lectures that how we'll work on this. Performance analyzer. At times what happens कि हम जब कोई भी रिपोर्ट डिज़ाइन कर रहे होते हैं तो हम फ्लो में काफ़ी चीज़ें बनाते जाते हैं and that makes our report very heavy and this impacts the performance of the report. कई बार रिपोर्ट स्लो हो जाती है. So to enhance the performance of our report हम performance analyzer का यूज कर सकते हैं.
सो परफॉर्मेंस एनालाइजर क्या करता है, जैसे हम इस पे क्लिक करेंगे सो इट विल गिव अस अ ऑप्शन जहाँ पे एक बटन होगा स्टार्ट एनालाइज, उस पर हम क्लिक करेंगे तो ये हमारे सारे कंपोनेंट को एनालाइज करना स्टार्ट करेगा। दैट ये जो भी हमारा विजुअल है, इसमें जो भी डेटा आ रहा है वो कितना टाइम ले रहा है, कितनी स्पेस कंज्यूम कर रहा है, राइट? वो सारी इस तरह की एनालिसिस करके एक टैबुलर फॉर्मेट में हमें समरी दे देगा। उसके बेसिस पे हम डिसाइड कर सकते हैं कि कौन सा विजुअल और कौन सा ऑपरेशन ज़्यादा टाइम ले रहा है जिसकी वजह से हमारी रिपोर्ट स्लो हो रही है, और उसको आइडेंटिफाई करके हम उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं और हमारी जो परफॉर्मेंस है उसको ज़्यादा इन्हांस कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आर सिंक स्लाइसर्स। नाउ स्लाइसर्स इज अ काइंड ऑफ विजुअल which Power BI provides us. Slicer is basically a type of filter, मतलब इसको एज अ फिल्टर हम यूज करते हैं पावर BI डैशबोर्ड में। अब स्लाइसर्स कैसे यूज होते हैं और डिफरेंट पेजेस पे अगर हमने मल्टीपल स्लाइसर्स यूज करे हैं, डिफरेंट पेजेस पे हमने सिमिलर स्लाइसर्स यूज करे हैं, जैसे कि अगर डेट का स्लाइसर एक पेज पे है और हमने उसको दूसरे पेज पे भी यूज किया है, एंड नाउ वी वांट कि अगर हम एक ही पेज पे स्लाइसर को चेंज करें और वो दूसरे पेज पे ऑटोमेटिकली चेंज हो जाए, राइट? तब हम इन दैट केस वी यूज दिस ऑप्शन कॉल्ड सिंक स्लाइसर। हम दोनों स्लाइसर्स को सिंक कर देते हैं ताकि किसी भी पेज पे वो स्लाइसर चेंज हो तो इन अदर पेजेस जिस पे भी वो स्लाइसर अवेलेबल है वो अपने आप चेंज हो जाना चाहिए, ताकि उसके बेसिस पे रिपोर्ट हमें यूनिफॉर्मली दिखाई दे सारे पेजेस में। गॉट इट? एनी क्वेश्चंस? I've got only one thumbs down. बाकी सब सो तो नहीं गए? What part should I repeat? जागृत, कौन सा पार्ट रिपीट करना है? सिंक स्लाइसर्स, अच्छा। सो लेट्स सपोज इमेजिन देयर आर मल्टीपल पेजेस और स्लाइसर्स में पहले आपको ये बता देती हूँ, स्लाइसर्स आर काइंड ऑफ फिल्टर। ठीक है, तो फिल्टर का क्या काम होता है कि हमारे डेटा को एक पर्टिकुलर कंडीशन पे फिल्टर कर देना। सो आई एम टेकिंग अ एग्जाम्पल ऑफ अ डेट फिल्टर, कि हमें हमारा जो पूरा पेज है उसके डेटा को डेट के बेसिस पे फिल्टर करना है, कि हमें डेटा चाहिए जुलाई 10th 2021 से पहले का डेटा चाहिए, तो हम वहाँ पे स्लाइसर में डेटा सेलेक्ट करेंगे। नाउ जो हमारी रिपोर्ट या डैशबोर्ड होती है उसमें मल्टीपल पेजेस हो सकते हैं और सारे पेजेस में एक ही तरह का स्लाइसर हो सकता है, जैसे कि सारे पेजेस में डेट स्लाइसर हम दे सकते हैं, राइट? तो हम ये चाहते हैं कि अगर एक पेज पे हमने डेट स्लाइसर को सिलेक्ट कर लिया है किसी एक पर्टिकुलर कंडीशन पे, तो वो सारे पेजेस में ऑटोमेटिकली वो ही वैल्यू सिलेक्ट हो जानी चाहिए, ताकि जैसे हम एक पेज पे उस डेट के बेसिस पे वैल्यूज देख रहे हैं और हम दूसरे पेज पे मूव करें तो हमारी वैल्यूज उसी डेट के कॉरस्पॉन्डिंग होनी चाहिए। दिस मेक्स आवर एनालिसिस इजी, ताकि हमें बार बार हर पेज पे जाके सिमिलर काइंड ऑफ फिल्टर जो है वो चेंज ना करना पड़े। ठीक है, समझ में आया? ओके, let's move on to next slide then. This is optimize tab. Optimize tab में कुछ limited options होते हैं, जैसे कि pause visual, refresh visual, optimize presets, performance analyzer, this is a repeated option, and apply all slicer button.
लेट्स डिस्कस क्या होते हैं ऑप्शंस। सबसे पहले है पॉज विजुअल्स। सो पॉज विजुअल्स क्या करता है कि देर आर सर्टेन सिनेरियोज की जहाँ पे लेट्स सपोज हमने ऐसे डेटा सेट के साथ में हमारे डैशबोर्ड को कनेक्ट किया है जो कि ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होता रहता है कुछ कुछ टाइम में, या फिर हमने अपने डैशबोर्ड पे ऑटोमेटिक रिफ्रेश सेट कर रखा है एंड एट दैट पर्टिकुलर टाइम हम उस डैशबोर्ड पे कुछ चेंज कर रहे हैं, राइट? मे बी कुछ मॉडलिंग चेंज कर रहे हैं या फिर विजुअल में चेंज कर रहे हैं, और हम चाहते हैं कि ड्यूरिंग दैट पीरियड ऑफ टाइम जब तक हम चेंज कर रहे हैं डेटा में कुछ भी अपडेट हो रहा है अगर बैकएंड में, तो वो फ्रंट एंड पे नहीं होना चाहिए, रिफ्रेश नहीं होना चाहिए। तो हम पॉज विजुअल ऑप्शन का यूज करेंगे। हम पॉज विजुअल को इनेबल कर देंगे, तो जितने टाइम तक हम डैशबोर्ड पे काम कर रहे होंगे डेटा रिफ्रेश नहीं होएगा, ठीक है? कोई भी चेंजेस हमें डेटा पे दिखाई नहीं देंगे एट द फ्रंट एंड लेवल। नेक्स्ट इज रिफ्रेश विजुअल्स। जब हमने पॉज कर दिया, काम खत्म होने के बाद में अब हमें चाहिए कि पूरा डेटा जो भी लेटेस्ट चेंज हो रखा है वो हमें फ्रंट एंड में दिखाई दे, तो हम रिफ्रेश विजुअल को यूज करके वो सारे विजुअल्स को वापस से अप टू डेट डेटा तक रिफ्रेश कर लेंगे, ठीक है? नेक्स्ट इज ऑप्टिमाइजेशन प्रीसेट्स। अच्छा, सो ऑप्टिमाइजेशन प्रीसेट्स में क्या होता है कि हमारे पास में ऑलरेडी डिजाइंड कुछ डैशबोर्ड्स होते हैं जिनको हम यूज कर सकते हैं डैशबोर्ड बनाने के लिए भी। तो उससे क्या है कि हमें थोड़ा हेल्प मिल जाएगी किस तरह के विजुअल्स हम बनाएं, कैसे विजुअल्स बनाएं। तो वहाँ पे कुछ एग्जाम्पल्स प्रेजेंट होते हैं सो दैट वी कैन हैव अ इंस्पिरेशन फ्रॉम। परफॉर्मेंस एनालाइजर, अगेन दिस इज अ रिपीटेड ऑप्शन जो कि हमारे पास में मॉडलिंग टैब में था, राइट? तो जो कि मैंने एक्सप्लेन कर दिया कि हम अपने डैशबोर्ड की परफॉर्मेंस को एनहांस करने के लिए परफॉर्मेंस एनालाइजर को यूज करते हैं। अप्लाई ऑल स्लाइसर बटन। तो जैसे कि अगर हमने सिंक स्लाइसर नहीं लगा रखा है इन एनी केस, और हम चाहते हैं कि पर्टिकुलर स्लाइसर जो हमने एक पेज पे हमने सेलेक्ट कर रखा है वो सारे पेजेस पे सेलेक्ट हो जाना चाहिए, तो हम एक बटन प्रोवाइड कर सकते हैं इन दैट केस विच इज अप्लाई ऑल स्लाइसर बटन। तो जो ऑप्शन हमने यहाँ सेलेक्ट करा है वो सारे स्लाइसर में सेलेक्ट हो जाना चाहिए जैसे ही हम उस बटन को क्लिक करेंगे। सो बाय यूजिंग अप्लाई ऑल स्लाइसर बटन वी कैन enable this functionality. Any questions? Okay. Now let's move to Power BI Desktop Help tab. अब हेल्प टैब में आप किसी भी टूल के या एप्लीकेशन के हेल्प टैब में जाओगे, सो यू विल गेट सच ऑप्शंस जिससे आप कुछ लर्न कर सको उस एप्लीकेशन के बारे में, या फिर आपको कोई हेल्प चाहिए फ्रॉम द कम्युनिटी ऑफ एप्लीकेशन तो आप उसको रीच आउट कर सको। सिमिलर थिंग हैपन्स इन पावर बीआई डेस्कटॉप हेल्प टैब, जहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन इज अबाउट टेल्स अस कि जो आपने पावर बीआई डेस्कटॉप डाउनलोड कर रखा है जिसको आप यूज़ कर रहे हो, उसका वर्जन क्या है, उसका यूज़र आईडी क्या है, सेशन आईडी क्या है, कुछ इस तरह के इंफॉर्मेशन हमें अबाउट में मिलते हैं। नेक्स्ट इज गाइडेड लर्निंग। गाइडेड लर्निंग में कुछ वीडियो ट्यूटोरियल्स होते हैं पावर बीआई के, जिसको जैसे आप इस पर क्लिक करोगे तो आप एक वेबसाइट पे रीडायरेक्ट हो जाओगे। वहाँ पे आपको वीडियो ट्यूटोरियल्स मिलेंगे, शॉर्ट वीडियो ट्यूटोरियल्स जो कि आपको बताएंगे अबाउट पावर बीआई, राइट? ट्रेनिंग वीडियोस, जो पावर बीआई की अपनी कुछ ट्रेनिंग वीडियोस हैं, वो यहाँ पे इस ऑप्शन में आप जैसे ही क्लिक करोगे आप रीडायरेक्ट हो जाओगे दूसरी स्क्रीन पे, और वहाँ पे पावर बीआई का अपना एक यूट्यूब चैनल है जहाँ पे वो लोग अपना वीडियोस, मंथली अपडेट की वीडियोस आती रहती हैं पावर बीआई चैनल पे। कोई उनका मे बी वेबिनार हो रहा है या फिर कोई सेशन हो रहा है कहीं पे, तो वो सेशन अगर रिकॉर्डेड है दे पोस्ट ऑन यूट्यूब। तो पावर बीआई यूट्यूब का चैनल है, वहाँ पे आप ये सारी चीज़ें देख सकते हो। सो इफ़ यू वांट टू गेट बी
अप टू डेट इन पावर बी आई एनहांसमेंट्स, तो आप उस चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हो. मोस्टली तो पीपल यूज दिस चैनल फॉर मंथली अपडेट्स. वहाँ पे हर मंथ एक वीडियो अपलोड होती है जो कि एक्सप्लेन करती है कि व्हाट इज द अपडेट ऑफ दिस मंथ. राइट. नेक्स्ट इज डॉक्यूमेंटेशन. पावर बी आई का एक डिटेल डॉक्यूमेंटेशन है, एज सारे एप्लीकेशंस का होता है. जो भी एप्लीकेशन है उनका एक डॉक्यूमेंटेशन ज़रूर होता है जो कि हमें बताता है कि इस एप्लीकेशन को एक्चुअली यूज़ कैसे करना है, जो भी फीचर्स हमारे पास हैं वो कैसे यूज़ किए जा सकते हैं. सो वन कैन गो एंड रीड द डॉक्यूमेंटेशन. अगर आपको भी क्यूरियोसिटी है, सो यू कैन ऑल्सो गो एंड रीड द डॉक्यूमेंटेशन. अगर आपको वहाँ पे कुछ समझ में नहीं आता, यू कैन रेज द क्वेश्चन इन क्लास. ओके. नेक्स्ट इज सपोर्ट. जैसा कि मैंने आपको बताया, पावर बी आई हैज़ अ वेरी गुड कम्युनिटी एंड सपोर्ट सिस्टम. तो अगर आपको कुछ कंप्लेन है या फिर कोई दिक्कत हो रही है पावर बी आई में, कोई चीज़ नहीं चल रही है जो चलनी चाहिए थी, जिस तरीके से काम नहीं हो रहा है, तो आप सपोर्ट पे जाके अपनी क्वेरी रेज कर सकते हैं. आपको पावर बी आई सपोर्ट टीम रिप्लाई बैक करेगी और आपकी क्वेरी वो लोग सॉल्व करेंगे. नेक्स्ट इज पावर बी आई ब्लॉग. लाइक ट्रेनिंग वीडियोस एंड गाइडेड लर्निंग, इनका एक ब्लॉग भी है जिसपे जिसपे कई ब्लॉगर्स अपने आर्टिकल्स पावर बी आई से रिलेटेड पब्लिश करते हैं लिख के. सो यू कैन रीड दोज एज वेल. कम्युनिटी, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में भी डिस्कस किया था, पावर बी आई हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी. अगर आपको ऐसा लगता है कि कोई नए फीचर्स हैं, जैसा कि आप काम करते वक्त आपको फील हुआ दैट दिस इज अ सर्टेन काइंड ऑफ फीचर जो मुझे चाहिए काम करने के लिए, सो यू कैन गो एंड डिस्कस इन द कम्युनिटी दैट दूसरे मे बी डेवलपर्स को भी सिमिलर काइंड ऑफ प्रॉब्लम फेस करनी पड़ रही है. यू कैन डिस्कस दैट, यू कैन टॉक टू other developers, Power BI developers, and अगर आपको लगता है कि this is a well like so many people are facing the similar kind of problem, तो आप Power BI for developers पे जाके ये प्रॉब्लम रेज कर सकते हैं एज अ टिकट. ये टिकट आइडेंटिफाई करते हैं सारे जो Power BI के डेवलपर्स हैं, वो जो भी डिज़ाइन करते हैं Power BI का इंटरफेस. और अगर उस टिकट पे सर्टेन नंबर ऑफ लाइक्स या अप लाइक्स जैसे जो भी ऑप्शंस होते हैं, वो वहाँ पे अगर अप लाइक्स ज़्यादा होते हैं, ज़्यादातर डेवलपर्स वो फेस कर रहे होते हैं और आपको अच्छे वोट्स मिल जाते हैं वहाँ पे, सो पावर बी आई डिसाइड्स कि ठीक है, अब ये जो फीचर है हम इसको डिज़ाइन करके मे बी कुछ मंथ बाद अपडेट्स में इसको दे देंगे. सो दिस इज़ हाउ डेवलपर्स वर्क, और वो नए नए फीचर्स को आइडेंटिफाई करके बनाते हैं. So this is how you can use the community of Power BI. Same thing, submit an idea में भी आप अपने आइडियाज को, मे बी आपका कोई आइडिया है वहाँ पे आप जाके सबमिट कर सकते हो. वहाँ पे भी कुछ इसी तरह का सिस्टम है. लाइक्स होते हैं, जितने लोगों ने आपके आइडिया को लाइक किया है उस बेसिस पे वो आइडिया सेलेक्ट करते हैं, एंड वहाँ उस जो आइडिया सेलेक्ट हुआ है उसके ऊपर डेवलपर्स काम करते हैं और वो किसी मंथली अपडेट में वो हमें फीचर मिल जाता है. नेक्स्ट इज एक्सटर्नल टूल्स. सो ऐसा कभी आपको फील होता है कि सिर्फ पावर बीआई के अंदर जो टूल्स हमारे पास अवेलेबल हैं उसके अलावा भी हमें कुछ टूल्स यूज़ करने हैं विद पावर बीआई, तो हम उन टूल्स को कोलैबोरेट कर सकते हैं पावर बीआई के साथ में. तो एक्सटर्नल टूल इज द ऑप्शन जिसको हम यूज़ करके दूसरे टूल्स को पावर बीआई के साथ यूज़ कर सकते हैं. देर आर मेनी अदर टूल्स विच पावर बीआई प्रोवाइड जो आप पावर बीआई के साथ में यूज़ कर सकते हो काम करने के लिए. एग्जाम्पल्स जो कि मैंने आपको बताया इन ऑप्टिमाइज ऑप्शन ऑल्सो, जहाँ पे प्रीसेट्स अवेलेबल थे पहले से बने हुए कुछ डैशबोर्ड्स जिनको आप देख के इंस्पिरेशन ले सकते हो डैशबोर्ड्स बनाने के कि आपको किस तरह का डैशबोर्ड डिज़ाइन करना चाहिए. वैसे ही कुछ एग्जाम्पल्स में भी आपको चीज़ें मिलेंगी जो कि पहले किसी ने जैसे डैशबोर्ड्स बनाए होंगे और वो लोग यहाँ पे सबमिट कर देते हैं, राइट. तो वो कुछ सैम्पल वर्क फाइल्स आप देख सकते हो, उनको डाउनलोड कर सकते हो, देख सकते हो कि वो विजुअल्स कैसे बने हैं, किस तरीके से उन्होंने बनाए हैं, कैसे डिज़ाइन करे हैं. तो वो सारी चीज़ें अगर आपको देखनी है, सो यू कैन यूज़ द ऑप्शन एग्जाम्पल्स. कंसल्टिंग सर्विसेज, तो कोई भी आपको कंसल्टिंग सर्विसेज चाहिए पावर बीआई की, सो यू विल बी रीडायरेक्टेड
टू द पेज जहाँ पे फ्री पेड जो भी कंसल्टिंग सर्विसेज प्रोवाइड करती है पावर BI, वहाँ पे ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आप सेलेक्ट कर सकते हो विच एवर कंसल्टिंग सर्विस यू नीड. So this was the last tab of Power BI. तो tabs हम जो first tab हम discuss कर रहे थे उसमें ये सारे options complete हो गए. Any questions? Nathan, yes, Nathan. So, ma'am, compared to Tableau, what are the advantages of Power BI? Like, why is it more preferred? Right. So Tableau use करने के लिए you would be required a knowledge of language called R. Tableau uses R language for all the analysis work, so which restricts the use, which restricts the user to use Power BI more efficiently. Because if someone is not familiar with R, it gets difficult for them to use Tableau. Right? So you need to get some kind of expertise in R to use it more efficiently. Next could be Tableau is kind of a platform which is not like enhancing itself with time. They have very limited kind of options, but Power BI has variety of options and they are enhancing the platform every month. Every month they are giving some updates, some new features which are helping our developers to develop very interactive and easy to manage reports and dashboards. Third point is the costing. Costing is the most preferred thing when it comes to usage. When companies discuss on things, the costing is a very crucial part. So costing of Power BI is very negotiable, and I can't say negotiable. It is very minimal compared to other visualization apps. Understood, ma'am. Thank you. Okay. Moving on to Power BI desktop, three icons which I have discussed in the first slide of this section. So these are the three options. First is report tab, data tab and model tab. So ये तीनों options क्या क्या काम करते हैं? Let's see. So first is report tab. So report tab is the tab जहाँ पे हम हमारी जितनी रिपोर्ट्स हैं वो डिज़ाइन करते हैं, जो कि अभी तक हम डिस्कस कर रहे थे, जो भी फीचर्स वो जहाँ पे इम्प्लीमेंट करते हैं, दैट इज़ अ रिपोर्ट टैब. वहाँ पे हम अपने विजुअल्स ऐड करते हैं, रिपोर्ट को डिज़ाइन करते हैं, उसका कैसा लुक होएगा वो डिसाइड करते हैं. सो दीज आर द थिंग्स which we do on report tab. Sorry, this question just came in my mind. So do you guys, anyone here have a language problem? Like anyone who doesn't understand Hindi and not comfortable with it? Okay, cool. This is good. So next is data tab. Data tab में क्या है कि हमें हमारा जो डेटा है उसका व्यू काइंड ऑफ एक्सेल के फॉर्मेट में दिखाई देगा. जैसे एक्सेल में हम पूरा टेबल देख सकते हैं, वैसे ही डेटा व्यू में हम हमारी टेबल्स को देख सकते हैं. सारे कॉलम्स दिखेंगे, डेटा की जितनी रोज हैं, सेल्स में क्या क्या वैल्यूज हैं, वो सारी हम डेटा टैब में देख सकते हैं. ठीक है. नेक्स्ट इज मॉडल टैब. सो जो भी हम मॉडलिंग करेंगे, टेबल्स के बीच में जॉइंस लगाएंगे, किस तरह से कौन सी टेबल हमारी किस टेबल से कनेक्टेड है, वो हमें एज एन एक फ्लो चार्ट के फॉर्म में मॉडल टैब में दिखाई देगी. तो दैट इज अ वेरी गुड व्यू. तो जब हम स्कीमास बनाते हैं, जैसे कि स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा, इस तरह की मॉडलिंग करते हैं, तो दैट इज इजीली अवेलेबल, लाइक इजीली विजिबल इन मॉडल टैब.
ये हम अपनी फ्यूचर क्लासेस में देखेंगे जब हम पढ़ेंगे कि स्टार स्कीमा, स्नोफ्लेक स्कीमा कैसे बनाते हैं और कैसे दिखता है इन मॉडल टैब। वो सारी चीज़ें अभी हम आगे के लेक्चर्स में देखेंगे। सो दिस इज द रिपोर्ट व्यू जिसके बारे में अभी मैंने बताया था आपको। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। यहीं पे हम सारे पेजेस ऐड करते हैं और हमारी रिपोर्ट को डिज़ाइन करते हैं। दिस इज हाउ आवर डेटा व्यू लुक्स लाइक। यहाँ पे हमारी सारी टेबल्स के नाम होते हैं और जिस भी टेबल को हम सेलेक्ट करेंगे वो टेबल यहाँ पे ओपन हो जाएगी और स्क्रॉल यूज़ करके हम उस टेबल को पूरा व्यू कर सकते हैं कि किस तरह का डेटा है, क्या डेटा है, कौन सी वैल्यूज़ हैं, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देख सकते हैं। नेक्स्ट इज डेस्कटॉप मॉडल व्यू। सी दिस इज हाउ मॉडल व्यू लुक्स लाइक। ऐसे मॉडल दिखाई देता है हमारा। कोई भी टेबल है वो कैसे कनेक्टेड है, कार्डिनैलिटी क्या है कनेक्शन की, किस तरह का कनेक्शन है, लेफ्ट जॉइन है, आउटर जॉइन है, इनर जॉइन है, जो भी जॉइंस है वो सब हम यहाँ पे दिख सकते हैं, राइट? ओके, सो आई थिंक I've covered all the topics which I have decided for today. Any questions, anybody? No, ma'am. Okay, so we can wrap up the today's session. So I have given you the task. क्या करना है आपको अब जाके? आपको आज मैं लिंक प्रोवाइड कर दूंगी इन डिस्कॉर्ड चैनल। सो वहाँ से आप पावर BI डेस्कटॉप को डाउनलोड करोगे, उसको इंस्टॉल करोगे एंड देन यू विल एक्सप्लोर ऑल द ऑप्शंस कि कैसे वो ऑप्शन काम कर रहा है, क्या खुल रहा है, किस तरह के और ऑप्शंस आपको दिखाई दे रहे हैं क्लिक करने पे। यू विल एक्सप्लोर द इंटरफेस ऑफ पावर BI डेस्कटॉप। ओके, कल की क्लास में हम देखेंगे डेटा ट्रांसफॉर्मेशन एंड मॉडलिंग कैसे होती हैं, क्या क्या चीज़ें होती हैं, किस तरह के कनेक्शंस हम लोग